Hi, hi, this is Tanushri, and yes, I wanted to say this thing that I'm gonna discuss something very important, and one of the things that I wanted to tell, but I have to cut the video because I was not telling it rightly. So I will try to tell it that whatever I am saying, try to keep it in your head and as a pointer, or maybe whatever you like about the discussions that I am having right now. You just keep it in head that maybe I can utilize this way, and the discussion that I am having today is something that I have experienced myself. I have been doing this recently. I think I used to not do this often, but I have been doing this recently, and I want to share this with you that you can also try it out, because if you do that minimum thing to yourself, then you are respecting yourself. Firstly, you're taking care of yourself, you're being good to yourself, you are being better for yourself, and that is important. So कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त, हमारा कोई बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड, हमारा कोई बहुत अच्छा कोई रिलेशनशिप ही बोल लेते हैं, कहीं भी रिलेशनशिप हो जाता है, इवन विद आवर पेरेंट्स। मतलब आई एम नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट आउटसाइड रिलेशनशिप्स। समटाइम रफ पैचेस गो बिटवीन आवर पेरेंट्स टू। द पॉइंट इज इट, ऐसी बात नहीं है, मतलब एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो सकता है, बट कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जहाँ पे आपको सॉरी की ज़रूरत नहीं होती। You feel like the other person understand, the other person really feel what I am feeling, and when you just know that this other person is not doing it, like वो मुझे feel नहीं कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है this other person is not listening the way I wanted to be listened, and then you feel like this thing that like you feel like clarifying everything, you feel like conversations after conversations. The point is that conversations करना बहुत अच्छा है, आई थिंक। जहाँ ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। रिश्तों को रखने के लिए कन्वर्सेशन ज़रूरी है। पर कुछ लोग होते हैं, आई थिंक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यू काइंड ऑफ सेंस दैट लाइन दैट this person is disrespecting you one by one, bit by bit, or this person is being manipulative one by one, bit by bit, and you can do whatever it takes, but you cannot make your point come across as respectful that you want to this one person whom you want to just say that, listen to me, this is what I am saying, this is how I am feeling. And sometimes you have to understand this, you have to respect yourself, and बातें करने से बातें बढ़ती तो है। तो ये अगर रियल कंटेक्स्ट पे है कि वो आपका दोस्त है, आपके नेबरहुड में है, चलो जाके बात कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, इट्स फाइन। बट कभी कभार रिश्तों में ऐसा थोड़ा ज़्यादा इधर ऊपर नीचे इतना हो जाता है कि इट कैन नॉट बी इन अ गुड पोजिशन, and also in the things that is what I am speaking right now is more online, बिकॉज ऑफलाइन में ना चीज़ें होती है, बट ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस आपके होंगे शायद, जहाँ पे हो सकता है कि ये मुझे समझे 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 समझे, बट कहीं कहीं वो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, और ये अचानक से कहीं ना कहीं आप अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, बट देन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सम पीपल आर वर्थ फाइटिंग फॉर यू, and some people are not worth fighting for you too. सो जहाँ पे आप अपनी बात रख के थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, थोड़ा कुछ अपना गुस्सा भी है समझा पा रहे हो, देन इट्स फाइन। बट when to say no, when to draw the line that this is here I am speaking my point, if the person is not getting it, I will not answer it. I think I did this recently. I tried to point out and I was hurt, but I kind of jot down my thoughts and I made audios to this one person. And I think, like, I wanted a good, pretty reaction that is really genuine. But this other person, that person just said random weird things, and I felt like if I go on talking to this person, this and this and this and this and this, and I will talk to this person. Is this me? मेरा आमी
মানে আমি নিজে কথা বলছি, ও আমার কথাটা শুনছে না, विच इज़ मीनिंग लाइक मैं उससे बहुत अच्छे से बात कर तो रही हूँ पर वो मेरी बातें सुन नहीं रहा है। तो वो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है व्हाट्सएप में अगर देते हो, अभी कन्वर्सेशंस वैसे ही होता है, व्हाट्सएप टेक्स्ट ऐसा है क्योंकि अभी कंटेंट राइटिंग में हम नहीं सिखाते कि कैसे ऐसे लिखना है, ऐसे व्हाट्सएप टेक्स्ट भी लिखने का एक आर्ट है भाई। कुछ लोग उससे व्हाट्सएप टेक्स्ट कन्वर्सेशन से रील्स बना रहे हैं, तो व्हाट्सएप से इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट्सएप स्टिक्स में अगर कोई आपका बात सच में सुन नहीं रहा है, चाहे टू बी लाइक अभी मुझे साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। For my self-respect, I need to know where to draw the line, that this is my boundary. If you push my boundary, I will not talk to you the way I used to do so casually because you are crossing my boundary. And this creating boundaries are very tough. I cannot create that. I feel like I fail at it. I feel like उसको ये समझा लेते, उसको वो समझा लेते, but I'm gonna be saying this. I think something horrible happened to me because of this thing, that the other person will realize this. I'm not wrong. I'm not wrong. That person just misconstrue my statements or whatever I said in one audio chat, and she just made it so ugly at that time, and I kind of fell ill so much that I got sick. I got like in a horrible phase. So at that time I was kind of very young, 21 or 20, 21. So I didn't know things, and I think वही है कि আমি যে এই কথাগুলো বলছি, which means like whatever I am saying this to you, if it's reaching you more than the thing of monetizing my account, because it's not monetized, but I want you to guys understand certain things about yourself too, that मतलब मैं अपनी तजुर्बे से आपको मेरी बातें बता रही हूँ, ये सोच के कि अगर आप भी अपनी लाइफ को केयर करें, आप भी अपना रिस्पेक्ट रखें, कि मैं समझाती जा रही हूँ इस इंसान को कि सुनो 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 सुनो, पर ये सुन नहीं रहा है। प्लीज़ जस्ट गेट इट गो, लाइक उसको जाने दो। अगर वो आपको नहीं सुन रहा है, उसकी अगर कभी कभार हाय बोलोगे ना, हाय का रिप्लाई बहुत लंबा हो सकता है। हाय अगर बोलोगे तो जो आपको प्यार करेगा, दोस्त बोलेगा कैसी है तू, क्या है तू, क्या खा रही है, देयर आर सो मेनी रिएक्शंस दैट कैन हाय गिव। और कभी कभार वो हाय का रिप्लाई सिर्फ मतलब कोई एक हाय भी नहीं आता, दैट इज़ वेयर इट हर्ट्स, दैट वो बदल जाएगा। अभी वो समझ नहीं रहा है, बट येस ऑब्वियसली ऑनलाइन कन्वर्सेशंस आर इम्पोर्टेंट लाइक ऑफलाइन। So I would always say this, and I really feel this thing, कि if your partner, if your friends, if your long distance friends or any friends who was with you in real life but due to college have turned long distance friendships, ये कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। लाइक ये कॉमेडी शो नहीं चल रहा कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करता है। आई हैव रियली लिव्ड लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स ऑल माई लाइफ। I have this one friend Rohan, and abhi bhi, the point is that I recently recorded some audios and I sent him, and you know what, that man doesn't reply me right now. He doesn't reply me, like like he just doesn't reply me so much in general, but I know this man is busy, but he will listen to me. He really listens to me, that আমি শুনতে পারছো বলছি, which means that लिसन, कोई बातें आपका सुनना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी अ गुड लिसनर इन रियल लाइफ। और वो ऑनलाइन में ऑफलाइन में कहीं भी आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल सेलिब्रिटी हो तो आपको तो व्हाट्सएप प्राइवेट ही होता है, बहुत ज़्यादा कम लोग एक्सेस करेंगे बिकॉज वहाँ पे आपको वह है। बट इन योर डेली रैंडम लाइफ लाइक मी, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, मेरा जो व्हाट्सएप है आई जस्ट चेक इट आउट। इफ आई एम नॉट चेकिंग इट आउट, आई स्टिल ट्राई टू be very responsive in what I do in real life. So people need to see this thing that I'm responsibly there in my responses, because you cannot see WhatsApp ही तो है, अगर थोड़ा सा रख लिया तो कैसा होगा। नहीं, बहुत लोगों के लिए WhatsApp टेक्स्ट मैटर करता है, बहुत लोगों के लिए WhatsApp स्टिकर्स मैटर करता है, व्हाट्सअप रील्स मैटर करता है। रील्स तो खुद को प्रमोट कर रहे हो, खुद का थोड़ा सेल्फ ब्रांडिंग करने के लिए ज़रूरी होता है कभी कभार। व्हाट्सअप चैनल अगर है तो वहाँ पे कुछ एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा है तो वो देख सकते हो। यू कैन गेट अपडेट्स फ्रॉम दीज थिंग्स।
सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, दिस थिंग्स है ना, मैं ये नहीं बोल सकती कि ग्लो इम्पॉर्टेंट ना, मैंने ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता। अगर ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो व्हाट्सएप का इतना हर जगह इतना एडवर्टाइजमेंट्स नहीं चलता। इंटरनेट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही है कि ये मेरे कन्वर्सेशंस करते करते मैंने सीखा है कि अगर मैं दूसरे इंसान से मैं कर रही हूँ, द पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू मी इन रियल लाइफ, जो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा है अच्छे से, आई शुड जस्ट maintain silence. I should just feel like I'm hurt. I feel like going this and doing that, and sometimes I do say them. But one of the thing I will tell that कभी कभार दूसरे इंसान से जो बात कर रहा है, अगर वो इंसान मतलब मतलब हम लोग बोलने के लिए है कि वो बहुत टॉक्सिक था, वो बहुत रेड फ्लैग था, ये वो, बट रियल लाइफ में ना वो रेड फ्लैग एंड टॉक्सिसिटी मैटर नहीं करता। आप उससे प्यार करते हो या आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, वो थोड़े तो वो मैटर करता है, क्योंकि वो रिश्तों में होता है ना कि वो बेस्ट फ्रेंड है तो वो समझ जाएगी। बट कभी कभार नहीं समझते लोग, कभी कभार ब्रेकअप्स होते हैं, कभी कभार ब्रेकअप्स नहीं होते तो डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। अभी ठीक नहीं है, 2 दिन या 4 दिन बाद ठीक हो जाएगा, तो गिव दैट पर्सन द टाइम। Do not go on just saying that please listen to me, please listen to me, because in this way you are not just respecting yourself but you are also wasting your time, because जिसको सुनना होता है वो please listen to me नहीं सुनेगा, वो सुन लेगा। ये मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है, बिकॉज मैंने बहुत खुद को बेइज्जत किया है। मैंने समझा के मैं थितुर के काँप के वो समझा रही थी कि प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी। Nobody heard me, that's the thing, and it hurted me, and I think that's why there are lots of insecurities. I make videos, then I feel like, what if I'm cheated, or what if someone says something nasty, what if I'm trolled, what if something happened, what if my all efforts goes wrong, because so many bad things and ugly things happen early in my life, and I do not like see these things because I need someone's support anymore, because I know I can be on my own right now. Hopefully 2025 I will talk about how to be on my own in this journey. Vlogs कुछ भी आएंगे, but still that's not the thing that I'm going to tell, that at least for now I will tell कि इससे बात कर रहे हो, बात करे जा रहे हो, ये इंसान समझ नहीं रहा है. That person is not listening to you. The topic is that I'm going to put in this thumbnail, that if this person is not listening to me, what to do? If this person is not really listening to you in real general sense, even after your responses, replies, reactions, cheers, smiles, whatever thing you have done on internet or in real life also, प्लीज़ मेंटेन अ डिस्टेंस. खुद की इज्जत करना सीखो. खुद अकेले रह सकते हो. आई नो खुद अकेले नहीं रह सकती हो, बट हमें हमेशा यही लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें खुद से प्यार करना सिखाता रहता है. तो अगर एक इंसान आपको छोटा दिखा रहा है, या वो थोड़ा सा सैडनेस स्क्रिप्ट इन कर रहा है आपके माइंड सेट में, या आपको खुद के लिए बुरा लग रहा है, तो कहा क्या कुछ अच्छा होगा. खुद के लिए तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम अच्छा फील होना चाहिए ना, कि मैं इस इंसान से प्यार या इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो ये मुझे दे. थोड़ा सा कमी हो रहा है, पर स्टिल मैं खुद के लिए अच्छा फील करूँगा. बट कभी कभार हम अच्छे फील ही नहीं करते. दैट इज़ नॉट द टाइम टू लेट गो, बट दैट इज़ द टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ. हम लेट गो इजीली नहीं कर सकते, बट खुद का ख्याल तो रख सकते ना. तो अगर आप खुद का ख्याल रखने में हो जाओ ना, कि ये बात नहीं कर रहा है, ठीक है, बात नहीं कर रहा, तो मैं जर्नलिंग प्रैक्टिस कर लेती हूँ. या जैसे मैंने एक है कॉमन प्लेस बुक, तो मैं एक डायरी खरीद के कॉमन प्लेस बुक की के बारे में सोचती हूँ. या कभी कभार आर्ट जर्नलिंग कर लेती हूँ, या डांसिंग क्लास जाती हूँ, जिम जाती हूँ. जो करना चाहिए अपने को केयर करने के लिए. इट्स नॉट लाइक खुद के लिए, इट्स लाइक ट्राइंग टू वैल्यू लाइफ, trying to value your own self. That is important. So always do this, and this is what I want to say, because this is thing I just realized this today basically, because I have been talking to some people, I have been trying to justify my points and all these things, but I realized যে এদের সাথে কথা বলে কিছুই হয় না. which means like इन लोगों के साथ बात करके क्या बात, इनको समझाने का कुछ नहीं है. लाइक कुछ ही लोगों को, मतलब कभी कभार ना आप किसी को समझा नहीं सकते कि आप गलत हो या सही हो, मैटर नहीं करता. आप सिर्फ किसी को समझा नहीं सकते हो, आप खुद को समझा रहे हो दैट आई हैव टू वैल्यू माई सेल्फ एंड दैट इज़ इनफ. सिंपल.
एंड ऑफ डिस्कशन। यस, खुद को वैल्यू करना सीखिए। 2025 आ रहा है, 2026, 27, 2050 में भी अगर ये वायरल वीडियो गया ना, वही होगा, मैं बताऊंगी कि खुद को वैल्यू करना सीखिए। इट्स तनुश्री, आई एम इन दिस न्यू चैनल। न्यू चैनल नहीं है, बहुत पुराना है, 4 साल 5 साल हो गया है। अभी लोग देखते तो है, थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ गया है। थोड़ा सा ही बढ़ा है भाई, और भी बढ़ना चाहिए यार। यू लाइक माई कंटेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक इट एटलीस्ट 1K। तो मुझे 2025 में क्रॉस करना चाहिए, लाइक 1K और 2। आई वॉन्ट टू go to the K thing, because I'm really making lot of content right now. So please मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको कुछ भी बातों पे कुछ करना है, टॉपिक्स करना है कि इसके बारे में ये हो रहा है, कुछ भी रिलेटेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और कुछ भी एडवाइसेस या कुछ भी चाहिए, you can drop it in the comments. I will try to show up by making my new content on it. And this is for now. अभी कोई दूसरे कंटेंट में फिर से मिलेंगे। बाय।